So, hello friends, I'm live. Yeah, I think I'm live now on my page. So, hello friends, Dr. Sona here, and it's a little bit past 8, a few minutes past 8. So, Indian Standard Time, 8 p.m., and it's okay to be a few minutes past 8 in India. It's allowed. That is what we Indians do. We are a few minutes past our time. So, hello friends again, Dr. Sona Kaushal here. I'm a neuropsychologist and I'm based in Dehradun, and I do a lot of counselings of people who have, anxiety, stress, depression, relationship problems, and of course a lot of children behavior problems. And so I'm into a lot of counseling of that sort, and I'm also a professor of biochemistry, and I'm a pass out of KGMC Lucknow, and I'm a proud doctor, but psychology is my passion. So I'm into human behavior, human thoughts, and of course child psychology is what I really like. So friends, I have started this series of COVID lessons, keeping in mind that COVID is a virus which is causing a lot of havoc all over the world. It's a pandemic, but in spite of the fact that it is causing a lot of havoc, it is also it has come as a great teacher to us, and it has taught us lot many lessons. कोविड-19 से हमने बहुत कुछ सीखा भी है, और जो हमने सीखा है वो मेरे वीडियोस में है. आज मैं टुडे इज माय 13th वीडियो. हेलो, वेलकम नीरज जी. सो टुडे इज माय 13th वीडियो, and it is about my 13th video. Today I'll be talking about is your neighbors. How friendly, how much do you know your neighbors? So this is a lesson which COVID-19 has taught us, especially in these days, that it's very important to know our neighbors and be friendly with our neighbors, especially in such times. Otherwise, all my previous videos, friends, are on my or on the archives of my YouTube channel. So you can go to my YouTube, Sona Kaushal Gupta, and you'll find all my 12 previous videos there. And please subscribe to my channel. COVID lessons is what COVID has come to teach us, and what are the learnings and lessons we are getting from this COVID infection. COVID-19 infection is a viral infection. It's quite a morbid and a high mortality. It's a very virulent virus, and it is there all over the world. As you know, it's a respiratory virus. It attacks the respiratory mucus. It enters through the respiratory and through the mucosa of the mouth, and of course it causes respiratory distress, and other than that, then it can also go into other organ failures of the body. So it's a very virulent virus, and we have to save ourselves from it. And how do we save ourselves from it? By social distancing, friends, by this quarantine which we are all undergoing. I hope you're having happy quarantine now, because a lot of videos have come up how to be in lockdown, and today of course a lot of restrictions have been given in the lockdown, so it's more happier times now. So prevention is the only cure from COVID-19 as of now, and prevention is by wearing gloves so that you don't contaminate yourself with the virus, wearing masks so that you don't breathe it in or you don't breathe it out, social distancing so that you stay away from the distance of the virons in the air, and of course if you have to cough or sneeze, you do it on your elbow so that it doesn't spread out into the air. And of course trying to break the chain and not going out as if it is not required. So having said that, friends, what is the lesson that COVID-19 has taught us today? This generation, generation which has come today, this is a generation in which we were all and these were the times where we were all running here, there, everywhere, and we were running after our jobs, trying to find materialistic happiness, trying to be very busy, trying to earn a lot, and trying to buy a lot of things, hoarding in the houses, and and trying to show off with whatever we have, and trying to be very popular, and trying to be
very, what shall I say, trying to be very busy. And then, and we thought all that was being successful. COVID-19 came along and we were in lockdown. We were made to stay at home. So there was more of family time. There was more of mixing around with our family members, working at home, not going out, and so many things we learned which are there in my previous videos. One very important lesson we learned is when we were at home, we came to know our family members and we looked around. Something we had not done in the last so many years. हम लोग अगल बगल इधर उधर देखना ही बंद कर दिया था. हम लोग देख ही नहीं रहे थे कि अगल बगल हमारे रहता कौन है, ऊपर नीचे हमारे है कौन. People were just living in societies and in buildings and they were just moving in and out, busy. उनका if you had उनका face देखो तो they were in another world, climbing stairs or going upstairs or going into their apartments or their houses, and they hardly had time for anyone. Most of the time I used to see people on their mobile phones and walking and talking or even driving on their mobile phones. You all must have seen it. We hardly had any time to react with people all around us. Or neighbors ko to it was an alien thing. Half the time people didn't even know who their neighbors were, and they didn't bother and they didn't care. So let me tell you, neighbors are your first friends, are your first relatives. We all knew कि बचपन से हमें सिखाया गया था, हमें तो लव दाई नेबर, है ना. आपका नेबर ही तो आपके काम आता है. आपका नेबर ही तो जब कोई प्रॉब्लम होती है तो पहली आवाज आप देते हो तो आपका नेबर ही तो सुनता है. एंड हु इज अ नेबर? अ नेबर हु इज समवन हु लिव्स इन योर नेबरहुड. आपके आसपास जो रहता है वो आपका नेबर है. उसको ही हम नहीं जानते हैं. वी वर नॉट गिविंग एनी टाइम टू देम. वी वर नॉट इवन एक्नॉलेजिंग देम. Maybe we were not liking them. Maybe we were not even wanting to say hello for whatever reasons. So, but COVID-19 came, we were at home, and now is the time to understand that it's a wake-up call. So please be aware of who is living around you or in front of you or above you or in your society or in your neighborhood. Because at times it has been seen that ये देखा गया है कि आज के ज़माने में स्पेशली विद दिस COVID-19 देयर इज अ लॉट ऑफ मेंटल इलनेस अराउंड. अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु आर मेंटली not well. They are either depressed, they are anxious, or they are stressed, or they are into any other mental illness. और फिर वो अपने घरों में बंद हैं. तो अगर आप एक अच्छे नेबर हो और आपको पता है कि पीपल अराउंड यू or the people next to you or in front of you is a person who is very emotionally not very stable, और वो कई दिन से दिख ही नहीं रहा, and you find there are newspapers outside or you find उसकी grocery बाहर पड़ी या दूध बाहर पड़ा and he is not there and you haven't even seen him, let alone say hello. तो wake up, find out who's there, what's happened to him. Maybe he is in acute depression, chronic depression, psychosomatic, and leading to suicides. ये बहुत हो रहा है आजकल because अंदर बैठे बैठे people are thinking so many things. कितनी नेगेटिव थिंग्स, या घर में ही chaos है, आपस में बात नहीं हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, या whatever reason, या कोई लोनली है या कोई अकेला रह रहा है. सो इफ अ पर्सन इज नॉट देयर और कोई पर्सन विजिबल नहीं है, बहुत दिनों से आपको दिखा नहीं है, तो प्लीज वेक अप फ्रेंड्स एंड फाइंड आउट कोई डिप्रेशन में या कोई अंदर बीमार तो नहीं पड़ा आपके नेबरहुड में. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि एक नेबर आपका जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो आपसे you don't have, nothing is expected from you. People feel, a lot of people tell me कि अगर हम if we fall into these neighborhood friendly chats, अगर हम नेबर से ज़्यादा बात करेंगे या कुछ करेंगे तो maybe lot of expectations from me will be there. मेरे से वो क्या मालूम क्या एक्सपेक्ट करेगा, मुझे क्या देना पड़ेगा. अरे फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू that a smile is something. Welcome friends, so welcome Priyanka and welcome Dr. Akhilesh. So a smile is something which is doesn't cost you anything.
but it says smiles, it connects you, and it can make the other person happy, and it makes you happy, because when you smile you get the happiness first. So smile at your neighbor, say hello to him, even if the neighbor is not talking or he is not very approachable, or maybe he is under some stress, उसकी क्या प्रॉब्लम है ये आपको नहीं मालूम, तो आप क्या कर सकते हो, हम ये नहीं कह रहे कि किसी की प्रिवेसी को इन्वेड करो, कि किसी के जाके उसकी बातें या उसके घर में या उसके बारे में ट्राई टू इन्वेड हिज प्रिवेसी. आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग दैट हाय, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं, नमस्ते, आप ठीक हैं, सब ठीक है, इतना बोलने में क्या जाता है. एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर. और कोविड-19 अब ये बता रहा है हमें कि उठिए, जागिए. अगर कोई रात को प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, और आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और है और आपको किसी की मदद चाहिए, तो बाय द टाइम यू रिंग अप एंड यू कॉल समवन, और वो आए ना आए इन दीज लॉकअप टाइम्स, योर नेबर इज द फर्स्ट पर्सन हु विल बी देयर टू हेल्प यू. So wake up, talk to your neighbor. I have seen many colonies in which the doors are shut. इतना social isolation भी किस काम का, जिसमें आप अपने नेबरहुड और नेबरिंग लोगों के साथ एक स्माइल नहीं दे सकते. इतना ईगो, इतना गरूर, इतना फियर, जो भी चीज़ आप में है. Let me talk of myself. If I'm very arrogant, or I'm full of ego, or I think I'm very great, or I'm scared, or I'm very कि मुझे बीमारी ना लग जाए, मुझे उसको कोई इन्फेक्शन ना हो, और ये सारी हो, या मैं डिप्रेस्ड हूँ, होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस, सुसाइडल हूँ, और मैं अंदर दुबक के बैठी हूँ, तो ऐसा भी क्या कि मैं 2 मिनट बाहर निकल के अगर किसी को हेलो नहीं कर सकती. सो व्हाट इज द यूज ऑफ लिविंग सच अ लाइफ? एंड इफ यू फाइंड सम योर नेबर इज बिहेविंग लाइक दिस, तो यू गो आउट एंड से हेलो. गो आउट मीन्स अपने प्रेमिसेस से भी, अगर आपको बैल्कनी में भी खड़े हुए, उस दिन हम लोगों ने बैठ के थालिया फॉर द आवर कोविड वॉरियर्स, हम लोगों ने क्लैप किया, वी बैंग्ड ऑन द थालीज. उस समय देयर वर सो मेनी पीपल आउटसाइड ऑन द बैल्कनी, स्माइल एट एवरीवन. अरे मेरे को तो आप स्माइल्स ही नहीं दिख रही हैं लोगों के चेहरे पे, लेकिन अल्कोहल पी के तो सब स्माइल कर रहे हैं, सड़कों पे झूम रहे हैं लोग. आज लिकर शॉप्स खुल गई हैं, सो पीपल आर वेरी हैप्पी. सो आप इस आर्टिफिशियल हैप्पीनेस से क्या करोगे, जो कि आप स्टिमुलेंट ले रहे हो, जो बाद में डिप्रेसिव होगा, अल्कोहल, और उसको पी के आप अपनी सेंसेस में ही हो, तो आप लाफ और स्माइल कर रहे हो. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट आर्टिफिशियल हैप्पीनेस? और उस स्माइल और हैप्पीनेस का फायदा क्या, जो सिर्फ आपको ही दे और बाहर तक रेडिएट ही ना करे. So a smile is something which first of course makes you happy, which is very important. Self care is the first thing. It spreads around and make people around you happy. तो अगर कोई दुखी भी है, उदास भी है, वो आपकी हाय और आपकी हेलो और आपकी स्माइल या नमस्ते सुन के he will respond. और अगर रिस्पॉन्ड नहीं भी करता है, वो उसकी प्रॉब्लम है. आपने अपना अच्छा कर्मा कर दिया, आपने एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर दी. कोविड-19 ये सिखाता है कि अगर इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा, इफ वी आर नॉट देयर फॉर ईच अदर, और देयर फॉर ईच अदर में भी मैं पैसे देने की या कुछ मटीरियलिस्टिक देने की बात नहीं कर रही हूँ. जस्ट अ स्माइल, जस्ट अ हाय, जस्ट अ हेलो, जस्ट टेलिंग समवन कि मैं आपके साथ हूँ. I have seen neighbors who are जो बिल्कुल लोनलीनेस ही नहीं होती है लोगों के अंदर, क्योंकि उनके नेबर्स इतने अच्छे होते हैं, एंड दे गिव देम सच अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि दे हैव समवन. सो अ नेबर इज योर फर्स्ट फैमिली. आपकी पहली फैमिली आपका नेबर है. तो प्लीज़ हैव गुड रिलेशनशिप विद योर नेबर्स. दिस इज समथिंग, ये कल्चर हमारे उसमें ख़त्म होता जा रहा है, हमारा ख़त्म हो गया था. इसको कोविड-19 अब लॉकडाउन में है, घर में है हम लोग, और पता नहीं कब तक रहना है, और इसके बाद भी हम लोग कितना बाहर जा पाएंगे. सो गेट अप, वेक अप एंड रिवाइव द गुड कल्चर एंड बी फ्रेंडली विद योर नेबर्स. सो this was a topic which I was finding very important, because lots of societies I was living in, I was seeing and I was getting calls. They were saying कि मैम बात ही नहीं करता, पड़ोस वाला बात नहीं करता, सीधा निकल जाता है. मैं कब तक बोलूँ, मैं ही क्यों बोलूँ, मैं कब तक बोलूँ, मैं क्यों बोलूँ, is not the problem. The problem is in the person जो बात नहीं कर रहा है.
अगर आप बात कर रहे हो सो एवरीथिंग इज फाइन एंड ओके विद यू, यू आर रीडिंग पॉजिटिव। प्रॉब्लम उसमें है जो बात नहीं कर रहा, वो स्कैर्ड है, वो दुखी है, वो परेशान है, वो स्ट्रेस में है। तो अगर एक बंदा परेशान है या एक बंदा साइकोलॉजिकली इल है, तो ज़रूरी नहीं कि वो इलनेस आप में भी आए और आप भी वैसे ही बिहेव करो। So you behave normally, naturally, happily and smile. So I have got this question कि मैम नेबर आप कर, आज आपका टॉपिक है व्हाट इज अ नेबर। सो नेबर क्या है? जो आपके इमिडिएटली नेक्स्ट, somebody who lives next to you। अगर आपकी घर है या आपके अलग से कोठी है तो somebody who lives across the street या to the next neighborhood is a neighbor। सो या अपार्टमेंट बिल्डिंग में जो ऊपर नीचे दाएं बाएं आपके सोसाइटी में अगर 10 घर है तो वो सारे आपके नेबर्स होते हैं ना। सो देयर इज अनदर थिंग कि नेबरहुड क्या होता है मैम? नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नेबरहुड इज योर एनवायरमेंट। नेबरहुड आपका एनवायरमेंट है फ्रेंड्स, और योर एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज your environment is what gives you the most effect। so आपका environment of course आपके friendly neighbors से बनता है, आपके आसपास कितनी cleanliness है उससे बनता है, cleanliness है और आपकी greenery है, all that is your neighborhood। but paramount is the people who are living in that neighborhood make your neighborhood। so have groups of friends, मेक फ्रेंड्स विद पीपल अराउंड यू, क्योंकि वो आपकी पहली फैमिली है। अगर कोई देर इज अ क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन फ्रॉम सविता, सविता फ्रॉम आनंद विहार देहरादून। शी हैज सेड कि मैम अगर आपका नेबर आपसे बात ही नहीं करता तो आप क्या करो? आई थिंक आई जस्ट टुक दैट अप जस्ट नाउ। अगर आपका नेबर आपसे बात ही नहीं करता है तो आप क्या करो? देखिए, एक चीज होती है विच इज ट्राइंग टू you do your karma। like I have always taught my children that you wish somebody, that is your karma। he replies or does not reply, that is his karma। तो एक तो ये फिलॉसफी आप फॉलो करो, आप विश करो, स्माइल करो, मूव ऑन करो। मुझे लगता है कि ये इतनी इन्फेक्शियस होती है विश और स्माइल कि 2 या 3 विश और स्माइल के बाद द पर्सन विल स्माइल बैक एंड ग्रीट यू बैक। एंड द अदर थिंग इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेन टू ड्रॉ द लाइन एंड वेयर टू ड्रॉ द लाइन। कि कई बार सिचुएशंस इतनी क्योटिक हो जाती हैं या कितनी वायलेंट हो या अग्रेसिव हो जाती हैं दैट द पर्सन इज नॉट एट ऑल वांटिंग टू टॉक टू यू। कोई प्रॉब्लम्स हैं, जेलसी है। जेलसी इज अ वेरी कॉमन फैक्टर। जो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं करते आजकल, इस पे मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज जेलसी। जेलसी है या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। भाई एक आपसे कोई क्यों बात नहीं करेगा? या तो उसमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं एरोगेंट, मैं बहुत बड़ा हूँ, या उसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, आई एम नो वन, दे आर बेटर देन मी। और यही जेलसी होती है कि वो मेरे से बेटर है, उनके पास वो है जो मेरे पास नहीं है, या ही हैज सम मेंटल इलनेस और ही इज टेकिंग सम ड्रग्स। तो इन वजहों से व्यक्ति बात नहीं करता। These are some of the very very important points। अब ये जो inferiority और superiority complex है, this is ego and ego is something which is negative, which is bad। so problem उसमें है, आप में नहीं है। तो अगर उसमें प्रॉब्लम है, उसमें कॉम्प्लेक्सेस हैं, आप अपना हेलो बोलिए, मूव ऑन करिए, आपने अपना मैसेज स्प्रेड कर दिया। जेलसी है तब भी हम ये कहते हैं कि जो पर्सन आपसे जेलस फील कर रहा है, वो इसलिए जेलस फील कर रहा है आपसे, उसको इसलिए आपसे ईर्ष्या है, इज जेलस ऑफ यू बिकॉज ही फील्स और ही और शी फील्स कि आपके पास वो क्वालिटी या वो चीज़ें वो सब कुछ है जो उसके पास नहीं है। अब वो इतनी मेहनत कर रहा है तब भी उसके पास वो स्किल नहीं है या वट एवर। सो ही इज जेलस ऑफ योर कॉम्पिटेंसी और योर अचीवमेंट्स। सो अ पर्सन हु फील्स कि मेरे पास वो नहीं है जो आपके पास है, उसके ऊपर तो और रहम करना चाहिए। सो उससे तो बिल्कुल बात करनी चाहिए जाके। सो डोंट टॉक इल ऑफ अ पर्सन हु यू फील इज टॉकिंग इल ऑफ यू, बिकॉज जस्ट टॉक गुड अबाउट हिम, इट विल रीच हिम एंड ही विल चेंज। हैविंग सेड दैट, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई वायलेंस बहुत ज़्यादा या ज़्यादा ही एग्रेशन है या बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम भी एक, यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन द पैराडाइम ऑफ योर सेल्फ एस्टीम ऑल्सो। इफ यू फील कि रिपीटेडली अगर आप हर्ट फील कर रहे हो, विच इज़ अगेन साइकोलॉजिकली वी टेल कि हर्ट फील करना या हैप्पी फील करना हमारे हाथ में है, एंड टू फील हर्ट इज अगेन ईगो।
So not don't try to feel hurt. That is his problem. But again, having said that, अगर आपकी self esteem पे you feel it is affecting your self esteem कि आप repeatedly बात कर रहे हो and the other person is not acknowledging you at all, तो line कब draw करनी है, ये कब, where to draw the line, कहाँ पे line, और फिर स्टॉप करना है, ये चीज आपको डिसाइड करनी है. तो एक रिलेशनशिप तोड़ना बहुत आसान है. इट्स वेरी इजी टू अ रिलेशन टू ब्रेक अ, बट रिलेशनशिप जोड़ के रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ रिलेशनशिप. सो एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू बी फ्रेंडली with your neighbors. So there was this very one other question which, so this Shikha has asked me, she's asked me from Saharanpur, मैम करना क्या चाहिए other than smile and talk. I think I have told that. She's saying और क्या करना चाहिए to build up a good rapport, a good relationship with your neighbors. अभी तो शिखा there is a lockdown time, social distancing है, तो फोन पे ही बात कर सकते हो, या आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज सकते हो, हाय हेलो, or good positive messages, या telling them that you care for them. Connect, इस चीज से connect रखिए. Later on when things get better, you can have a party, you can call them over, or you can take a walk with them around your society, neighborhood, or do some activity with them, involve them in some activity. Like I run a NGO, Pari Foundation, जो कि mental health awareness के बारे में काम करती है. तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जो कॉलोनी में मेरे लोग हैं मेरे साथ आए चले, उसमें इन्वॉल्व हो. सो सम ऑफ देम डू कम एंड दे आर सो हेल्पफुल and they are very good friends of mine, but some of them just don't. But then still I always keep my offer open. I also make it a point to laugh or smile and to wish anyone I meet in my colony. So many times I don't get a reply back, and so many times I get a very rude look, but it does not affect me because I understand कि problem psychology उनकी बिगड़ी हुई है. क्योंकि अगर happiness is my part of my being, I am a happy person, मेरा soul happiness से भरा हुआ है, तो अगर मेरे अंदर happiness है तभी तो बाहर आएगी. तो मेरे पे स्माइल तभी आएगा अगर मेरे अंदर स्माइल और हैप्पी हार्ट और सोल है. लेकिन अगर मैं अंदर दुख, कड़वाहट, गुस्से, चिढ़ा, नफरत से भरी हुई हूँ तो स्माइल कहाँ से आएगी. तो वो नहीं कर सकते हैं. सो नेवर माइंड, एक्नॉलेज देम, इग्नोर देम. अगर आपको सेल्फ एस्टीम पे हर्ट हो रही है तो रहने दो. लेकिन एज फार एज पॉसिबल COVID-19 को टेक इट एज योर टीचर एंड बी फ्रेंडली विद योर नेबर्स, बिकॉज लव योर नेबर्स से पहला स्टेप है बी फ्रेंडली विद देम एंड गो एंड से हेलो. पहला कदम आप उठाइए. Don't wait for the other person to say hello. You take the first step, you go out and say hello, and that thing will spread around. और जब भी ग्रुप्स में आप बैठो या बात करो तो इस बारे में जो मैंने आज चर्चा करी है, इस बारे में चर्चा करो कि इंस्टेड ऑफ हैविंग किटी पार्टीज जिसमें आप खा रहे हो, पी रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो और बेफालतू के एक दूसरे को डिस्कस कर रहे हो, अगर किटी पार्टी में कोई अच्छी डिस्कशंस हो या कुछ हैप्पीनेस हो जिसमें आप एक दूसरे का आर्ट या कला अप्रिशिएट करो, देन गो अहेड एंड डू इट. लेकिन अगर सिर्फ आपके पार्टीज या ग्रुप्स में क्रिटिसिज्म है, पुलिंग डाउन और डिस्कसिंग अदर पीपल है, अवॉइड सच प्लेसेस. इट्स बेटर टू स्टे एंड रीड थिंग्स एंड इम्प्रूव योर सेल्फ. तो फ्रेंड्स, ये टाइम COVID-19 लेसन्स का ये है. अपने आप को इम्प्रूव करिए. ये मत देखिए आपका नेबर क्या कर रहा है, आपका अड़ोसी पड़ोसी कहाँ जा रहा है, आ रहा है, बात कर रहा है, मैंने 10 बार आज बात करी है, उसने एक बार भी नहीं करी है. ये काउंट मत रखिए. ये बिजनेस डील्स नहीं है. रिलेशनशिप्स आर नॉट बिजनेस डील्स. एज फार एज पॉसिबल गो आउट एंड से हेलो. इट विल मेक यू फील गुड. सो अ पर्सन, कहते हैं, देर इज अ सेइंग डियर फ्रेंड्स, दैट जब बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है, तेज हवा आती है, तो जो पेड़ सीधे खड़े हुए हैं ना, जो तने हुए खड़े हुए हैं, यूकलिप्टस ट्री स्ट्रेट, वो उखड़ जाते हैं. यूकलिप्टस इज अ वेरी इज अ ट्री जो एकदम से अप्रूट होके इतना बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, बट इट गेट्स अप्रूटेड क्योंकि इट हैज नो पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी. ईगो है उसमें, तो वो गिर जाता है. लेकिन आप देखोगे जो छोटे छोटे पौधे हैं आपके, तुलसी का, पुदीने का पौधा है या घास है, तो वो नहीं कभी उखड़ता है तूफान से, क्योंकि वो इधर उधर झुक जाते हैं और हवा उनमें से निकल जाती है.
तो जो झुक जाता है, जो इधर उधर थोड़ा सा अपने आप को हम्बल सब एडजस्ट करके लाइफ में आगे निकलता है, वो पर्सन लाइफ में सक्सेसफुल है, सरवाइव करता है. दैट्स अ पर्सन, दैट इज व्हाट वी शुड बी. अडेप्टेबल, हैप्पी, फ्लेक्सिबल. It's a short life, so move around with people and be happy people. So this was my COVID lesson 13. Know your neighbor, be friendly with your neighbor. They are your first contacts, they are your first friends. So please share this video if you like it. Please subscribe to my YouTube channel and see my other archives of videos there. Meet me again tomorrow at 8 p.m. and we'll talk more about COVID lessons. I'll take up another very important topic. If there are any queries, you can put it in the message box, or you can in the comment box or message to me and I'll answer your queries. Thank you friends. Signing off. So Dr. Sona, good night.